Very beautiful. Good morning, class 11 biology students. So, after the completion of all three vegetative parts with their modifications, with their structure, now I am going to start the next topic, that is inflorescence. As well as after the completion of inflorescence, I am going to discuss all the parts of the flower, that how they are indicated in floral formula and floral diagram, which is very much important for you when you will study about the families. We have three families in our syllabus: Fabaceae, Solanaceae and Liliaceae family. We have three families. So before understanding the families, it is very necessary to understand what are the terms related to the different parts of the flower, as well as how they are indicated in floral formula and in floral diagram. So come with me, we will study the next topic. Now we are going to discuss our next topic, that is inflorescence. What is inflorescence? The arrangement of flower on floral axis is known as इनफ्लोरेसेंस. जिस तरीके से फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर अरेंज होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? इनफ्लोरेसेंस. एज वी नो दैट शूट हैज़ अ टिप, दैट इज नोन एज शूट एपिकल मेरिस्टेम. आफ्टर सम हार्मोनल प्रोसेसेस द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस इनटू floral axis by which all the parts of flowers are formed. Now the flower are arranged, it means the inflorescence are of two types. जो inflorescence होते हैं वो two type के होते हैं, racemose and cymose. ठीक है. Now it depends on the growth of the floral axis, if it is continue its growth or if it terminates its growth. Suppose this is a main axis, ये मेन एक्सिस है, एंड नाउ वन फ्लावर इज फॉर्म्ड. देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वन फ्लावर इट डजंट स्टॉप द ग्रोथ, इट कंटिन्यूसली ग्रो एंड फॉर्म अनदर फ्लावर, it continuously go from another flower. It means it never stops its growth. अपनी ग्रोथ को नहीं रोकती, उसी स्टेम के एक्सिस से नए फ्लावर बनते चले जाते हैं. एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज एक्रोपीटल अरेंजमेंट. एक के बाद उसी एक्सिस से बनते जा रहे हैं. This is known as racemose inflorescence. Now, if suppose this is the main axis and on the main axis the flower is formed. Now there is no flower formed by the continuation of this main axis. Now the flowers are formed laterally. अब जो flower हैं वो बेसिपिटल मतलब बेस पर बनेंगे. जैसे ये फ्लावर बन गया, अब इसके साइड से फ्लावर बनना शुरू होंगे. ठीक, तो इट मीन्स एक टिप पर केवल एक ही फ्लावर बनता है, फिर दूसरी नोड डिवाइड करके दूसरी ब्रांच बनाती है, वहां से दूसरा फ्लावर बनता है. सो दिस इज नोन एज साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम फीचर्स रिलेटेड टू द फ्लावर विच विल हेल्प यू टू ड्रॉ द फ्लोरल फॉर्मूला, टू ड्राइव द फॉर्मूला एंड ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम. सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस सम features of flower. As you know that flower has a stalk that is known as pedicel. फ्लावर में एक स्टॉक होती है जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हो, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिसिल. इफ इट इज प्रेजेंट देन फ्लावर इज नोन एज पेडिसिलेट, और इफ इट इज एब्सेंट द फ्लावर इज कॉल्ड सिसाइल. फ्लावर को क्या कहेंगे? सिसाइल. इफ फ्लावर हैज ऑल द पार्ट्स, अगर फ्लावर में सारे पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ऑल पार्ट्स आर प्रेजेंट, देन द फ्लावर इज कॉल्ड कंप्लीट. इफ एनी ऑफ पार्ट इज एब्सेंट देन फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट. ओके, नाउ इफ द फ्लावर हैज बोथ सेक्स ऑर्गन्स, अगर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज बाइसेक्चुअल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. और इफ द both sexes are different, this condition is known as unisexual, है ना. unisexual में if flower has only the male part then flower is known as staminate, or if the flower has only female part then the flower is called pistillate. Staminate flower is represented as this and pistillate flower is represented as this. Okay, now the next condition is plain formation. मतलब if we cut the flower
from any of the axes and always it cut into two equal halves. This condition is known as एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन. इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन. एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज सर्किल, और सर्किल के अंदर एक प्लस का साइन. और इफ वी कट द फ्लावर एंड इट ओनली कट फ्रॉम ओनली इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय द वन प्लेन. अगर हम फ्लावर को कट करते हैं और वो हमेशा केवल एक प्लेन से ही दो इक्विवेलेंट हाफ में कट होता है, देन दिस इज नोन एज जाइगोमॉर्फिक कंडीशन and it is represented by the sign of percentage or draw a circle and oblique. Okay, so these are the primitive main conditions by which you can determine which character is present in the plant. ठीक है. Now another feature I am going to discuss. कुछ और feature और आपको बताती हूँ मैं. कुछ फ्लावर्स में, जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पर स्टेम है, वहीं पर उस सैपल के नीचे भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनी होती हैं. सैपल के नीचे भी, सैपल तो ग्रीन कलर की होती है, वहाँ उसके नीचे भी छोटी छोटी कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है बेटा. दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ब्रैक्ट. इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? ब्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है. इफ दीज आर प्रेजेंट, अगर फ्लावर में ये प्रेजेंट हैं, देन दिस इज नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर. और अगर ये एब्सेंट हैं, देन दिस इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. अगर एब्सेंट हैं तो ई ब्रैक्टिएट और प्रेजेंट हैं तो ब्रैक्टिएट. तो जब हम फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं ना, तो डायग्राम बनाने के बाद उसके नीचे एक ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह की. ठीक है. तो वो इंडिकेट करती है कि फ्लावर कैसा है? ब्रैक्टिएट है. अगर नहीं होता तो नहीं बनाते हैं, और अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अदर कंडीशंस आल्सो. इफ द फ्लावर हैज 3 सेपल्स और पेटल्स और इन मल्टीपल्स, अगर 3 सेपल पेटल हैं या फिर 3 के मल्टीपल में, जैसे 6 हैं, 9 है, 12 है, देन द फ्लावर इज नोन एज ट्राइमेरस फ्लावर. क्या बोलेंगे? ट्राइमेरस. अगर 4 सेपल पेटल हैं और या फिर 4 के मल्टीपल में हैं, देन द फ्लावर इज नोन एज टेट्रामेरस. ठीक है. टेट्रामेरस कंडीशन होगी. इसी तरह से अगर 5 हैं या फिर 5 के मल्टीपल में हैं, देन दिस कंडीशन इज नोन एज पेंटामेरस कंडीशन. क्या बोलेंगे हम इसको? पेंटामेरस कंडीशन बोलेंगे. अब मैं आपको 2 कंडीशंस और बताती हूँ. एज वी नो दैट फ्लावर हैव सम ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर, है ना, विच प्रोटेक्ट द फ्लावर ड्यूरिंग बड कंडीशन. दीज स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंडली कॉल्ड कैलेक्स एंड द सिंगल यूनिट ऑफ कैलेक्स इज नोन एज सेपल. जो सिंगल यूनिट है कैलेक्स की, उसको क्या बोलते हैं हम? सेपल. इन फ्लोरल फॉर्मूला इट इज रिप्रेजेंटेड एज के. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? के से रिप्रेजेंट कर देते हैं. और इफ द कैलेक्स आर फ्यूज्ड, अगर कैलेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज गैमोसेप्लस कंडीशन. कंडीशन को क्या बोलेंगे हम? गैमोसेप्लस कंडीशन. सपोज इफ द कैलेक्स आर 5 इन नंबर, कैलेक्स कितने हैं नंबर में? 5 हैं. देन यू विल राइट फर्स्ट के, देन राइट द 5, नीचे हम 5 लिखेंगे. देन इफ दे आर फ्यूज्ड, देन क्लोज द 5 इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में आप क्लोज कर दो. कब करोगे? जब फ्यूज्ड है कैलेक्स. ठीक है. अब आती है बात, इफ दे आर सेपरेट, अगर वो जुड़े हुए नहीं हैं, देन दिस इज नोन एज पॉलीसेप्लस कंडीशन. क्या बोलेंगे हम इसको? पॉलीसेप्लस कंडीशन. इन दिस केस यू विल राइट के एंड राइट द 5. देयर इज नो नीड टू क्लोज द ब्रैकेट. यहाँ इसको ब्रैकेट में क्लोज करने की कोई भी जरूरत नहीं है. एनी फ्लोरल डायग्राम व्हेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ द कैलेक्स, देन द स्ट्रक्चर ऑफ कैलेक्स इज लाइक अ ब्रैक्ट. बिल्कुल ब्रैक्ट को उसी तरह से बनाते हैं जैसे कैलेक्स को बनाते हैं, इस तरह से. अब मैं फ्यूज्ड और अनफ्यूज कंडीशन बता देती हूँ. जैसे मैंने 5 कैलेक्स यहाँ ड्रॉ कर लिए सर्कल में. ठीक है. 1 2 3 4 इक्वल बनाना. मैंने अभी बनाए नहीं इक्वल, लेकिन जब भी बनाओ तब आप इक्वल बनाना, है ना. तो इस तरह से हमने सारे 5 कैलेक्स बना लिए. 5 कैलेक्स बनाने के बाद में अगर पॉलीसेप्लस कंडीशन हो तो आप इनको जोड़ना मत, है ना, ऐसे ही रहने देना जैसे मैंने बनाए हैं. लेकिन अगर कंडीशन गैमोसेप्लस हो तो आप इनको जॉइंट कर देना. सिंपल. ठीक. जॉइंट कर देना इनको. अब बात करते हैं हम बेटा कोरोला की, है ना. कोरोला आर द मोस्ट अट्रैक्टिव कलरफुल सेंटेड पार्ट ऑफ द प्लांट.
विच एंड द सिंगल यूनिट इज नोन एज पेटल, पंखुड़ियाँ जिनको बोलते हैं हम, ठीक है। कोरोला इज रिप्रेजेंटेड एज सी, और जो भी नंबर हो, मान के चलो 4 हैं तो सी के नीचे ही आप वो नंबर लिख दो। सेम है यहाँ पर भी बेटा, अगर फ्यूज्ड हैं तो क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस, वहीं से आगे ना, वहाँ सेपल था तो सेपलस लिखाता है, पेटल है तो पेटलस लिखेंगे, गैमोपेटलस। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे, C5 ब्रैकेट में बंद कर देना। और अगर कैसे हैं, सेपरेट हैं, तो क्या बोलोगे, पॉलीपेटलस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज C5, नो नीड ऑफ एनी ब्रैकेट, ब्रैकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बनाएंगे कैसे कोरोला को, तो कोरोला को हम बनाते हैं सिंपली ऐसे, लाइक अ हाफ मून, एक हाफ मून की तरह आप स्ट्रक्चर बना दोगे और उसको अंदर से फिल कर देना, ठीक है। इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करना भी बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ 5 या 4 जो भी लेना चाहो, सपोज 4 कोरोला है हमारे पास, है ना, तो हमने पहले तो 4 कोरोला बना लिए बेटा, जैसे 4 कोरोला हमने ड्रॉ कर लिए। अगर पॉलीस पेटलस कंडीशन है तो आप ऐसे ही रहने देना, इनको जोड़ना मत, है ना। और अगर गैमो है तो आप इनको ज्वाइंट कर देना, सिंपल, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना। अब हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, हमने जो एसेसरी पार्ट्स थे फ्लावर के वो कर लिए डिस्कस। अब हम एसेंशियल पार्ट पढ़ेंगे, एसेंशियल से मतलब हम डिस्कस करेंगे अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम को। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।